Hello friend, I am Balwant Singh, Assistant Professor in the Department of Electronics and Communication Engineering, IMS Engineering College, Ghaziabad, which is affiliated with the Dr. APJ Kalam Technical University, Lucknow. In the last lectures, we had discussed about the Laplace transform and its property. Today, we will discuss about the analysis and characterization of LTI system. LTI system stands for लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम यूजिंग LT. LT हम यहाँ पे LT लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए शॉर्ट फॉर्म का यूज करेंगे. ओके, देन इफ यू हैव ए LTI सिस्टम, सपोज वी हैव LTI सिस्टम, एनी LTI सिस्टम which has HS. HS means this is the Laplace transform of the ST. What is HS? Laplace transform of the ST is represented as SS. So, या टाइम डोमेन में हम इसको लिख सकते हैं ST. टाइम डोमेन में we have input XT and output YT, and in the Laplace domain or frequency domain XT का Laplace transform XS है और YT का Laplace transform YS है, as simple as. Then if we talk about the output YT, तो output will be the XT convolution with the ST in the time domain, of course in the time domain. तो LTI सिस्टम का आउटपुट क्या होता है? जो आपने इनपुट दिया है और जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है विच इज रिप्रेजेंटेड बाई ST हियर इज कन्वोल्यूशन ऑफ XT एंड ST. अब इसी का अगर हम कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म की देखें तो अगर XT का लाप्लास ट्रांसफॉर्म XS है, YT का लाप्लास ट्रांसफॉर्म YS है, देन अकॉर्डिंग टू द कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी YS विल बी multiplication of input, that is Laplace transform of input, that is XS, and the Laplace transform of the ST, that is HS. So, YS is equals to HS into XS. Very important information, suppose we have input XT represented by XT e की power ST and with S in the ROC of HS, then output, what will be the output? What will be the output? YS become e की पावर ST into HS. यहाँ पे यही e की पावर ST is an eigen function of the system with eigen value equal to the Laplace transform of the impulse response. This is a very important information about the eigen function and the eigen value. Suppose if we have region of convergence, suppose we have a system which has a region of convergence which includes the imaginary axis, that is the j omega axis. Means if we talk about the region of convergence, we have two axes, that is the real axis and it is the imaginary axis. Sometimes we write j omega, sometimes write real axis as sigma. So, here is the condition, we have a Laplace transform which includes imaginary axis like this manner, region of convergence which includes j omega axis, this axis. सपोज करते हैं अगर ये मान लेते हैं आपका -a है तो आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो भी दिया हुआ है इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा? रियल पार्ट ऑफ S शुड बी ग्रेटर देन -1. अगर इस तरह के आपके कंडीशन हैं तो आपका क्या करेगा? वो इमेजिनरी एक्सिस को इंक्लूड करेगा. पहली इंफॉर्मेशन. दूसरी इंफॉर्मेशन, जो भी सिस्टम इस तरह के रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इंक्लूड करता है जिसका कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपने HS से रिप्रेजेंट किया है, इज कॉमनली रिफर टू द एज सिस्टम फंक्शन और ट्रांसफर फंक्शन. सो एंड if we talk about in the terms of property of LTI system can be closely associated with the characteristic of the system function in the S plane.
यहाँ पे एक छोटी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमको समझना पड़ेगा। सिंपल सा, ट्रांसफ़र फंक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। क्यों? क्योंकि हमको किसी भी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए ट्रांसफ़र फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है, इसको थोड़ा सा हमको समझते हैं और थोड़ा कंटेम्परेट। सपोज करते हैं आपका एक कॉन्टीन्यूअस टाइम एलटीआई सिस्टम है। कॉन्टीन्यूअस टाइम एलटीआई सिस्टम में इसलिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हम बात कर रहे हैं, तो वो कॉन्टीन्यूअस टाइम सिस्टम के लिए ही अप्लीकेबल है ना। यहाँ पे इसका HS दिया हुआ है, टाइम डोमेन में बात करेंगे तो इम्पल्स रिस्पॉन्स ST दिया हुआ है और इनपुट XT दिया हुआ है। अगर इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले, सपोज करें XS आता है, YT दिया है, सपोज करें इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म YS आता है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि अगर हम सिंपल मैथमेटिक्स यूज़ करें तो YS अपॉन XS इक्वल्स टू HS, या आउटपुट के टर्म में बात करें तो YS इक्वल्स टू, जैसे लास्ट में अभी हमने देखा था, YS इक्वल्स टू HS इंटू XS। तो अब यहाँ पे समझते हैं ट्रांसफ़र फंक्शन की कॉमनली जो डिफिनीशन है वो क्या है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट इज नोन एज ट्रांसफ़र फंक्शन, ऑफ कोर्स फॉर कॉन्टिन्यूअस टाइम सिस्टम। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट इज नोन एज continuous time system, but one point must be remembered that all initial conditions should be zero. All initial conditions should be zero. यानी इसके अंदर जो भी ये एक सिस्टम है तो जाहिर सी बात है इसके अंदर आपके कंपोनेंट्स होंगे, एलिमेंट्स होंगे, तो उसमें जो चार्ज स्टोरिंग एलिमेंट्स हैं उसमें कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी ज़ीरो। तो ये क्या हो गया, Laplace transform of output upon Laplace transform of input is known as transfer function when all initial conditions are zero. This is the basic definition of the Laplace transform. उसी को यहाँ पे समझाने की कोशिश करी गई है कि सिस्टम फंक्शन, ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है। So with the help of this discussion we can decide the system is causal or not causal, okay, and system is stable or not stable. So here let's start the causality of the LTI system with the help of the Laplace transform and its the basic property. So the key point is that for a system with the rational system function, causality of the system is equivalent to the region of convergence being the right half plane to the right of the outermost pole. ओके, सो ये आपकी बेसिक नीड है। अगर आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है या ट्रांसफर फंक्शन आपका दिया हुआ है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस कंसेप्ट वी कैन कंक्लूड द सिस्टम इज causal or not causal. Okay, suppose we have a system which is the transfer function of the system is given as HS is equals to 1 upon S plus 1, where region of convergence is means real part of S is greater than minus 1. अब यहाँ पे समझते हैं, the system is rational, okay, जो सिस्टम फंक्शन आपका दिया हुआ है रेशनल है, और दूसरी चीज रीजन ROC इज द राइट ऑफ द राइट मोस्ट पोल। अब यहाँ पे पोल से समझते हैं। अगर मैं पोल की बात करूं तो ये जो आपका सिस्टम फंक्शन दिया हुआ है, पोल क्या होगा एट S इक्वल्स टू -1 पे। अब देखो ये आपका S प्लेन हो गया, दिस इज योर S प्लेन, दिस इज योर रियल एक्सिस, दिस इज योर इमेजिनरी एक्सिस, S इक्वल्स टू -1 यानी -1 यहां पे आ गया। ये आपके पोल की लोकेशन है, ठीक। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या दिया गया हुआ है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस शुड बी ग्रेटर देन -1 like this manner. Okay, the system function is rational. Okay, this condition is fulfilled by this transfer function and ROC in the right half of the rightmost pole. इसमें इत्तेफाक से एक ही पोल है, तो जो आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का डायरेक्शन क्या है, राइट मोस्ट पोल है। सो दिस सिस्टम इज कॉजल, एज सिंपल एज दिस इज वेरी सिंपल एग्जांपल जिससे हम ट्रांसफर फंक्शन और पोल की लोकेशन और डायरेक्शन ऑफ द ROC से आसानी से बता सकते हैं कि सिस्टम आपका कॉजल है कि नहीं है।
लेट्स हैव अनदर एग्जांपल जहाँ पे एच टी इसको टू दिया हुआ है ई की पावर माइनस मॉड टी, ठीक है। सिंस एच टी इक्वल्स टू नॉट जीरो फॉर टी इज लेस देन जीरो, दिस इज द बेसिक जो आपके सिग्नल और सिस्टम के बारे में कहा था उससे इंफॉर्मेशन हमने निकाला। और इस अगर जो भी आपका एच टी दिया हुआ है, इम्पल्स रिस्पॉन्स दिया हुआ है, इसका अगर हम ट्रांसफ़र फंक्शन निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, यानी जो इक्वेशन दिया हुआ है इसका हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर लें, इफ वी पुट, ठीक, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपका निकल के आएगा -2s² -1। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इसका जो आएगा फ्रॉम -1 टू +1, फ्रॉम -1 टू +1, -1 टू +1। इसके पोल की लोकेशन करेंगे तो एट s इक्वल्स टू 1 पे आपके 2 पोल होंगे, एट s इक्वल्स टू 1 पे आपके 2 पोल होंगे, यानी 1 पे ही आपका 2 पोल होगा, एक पोल ये हो गया, एक पोल ये हो गया, ओवरलैप। अब समझना है, अब रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या है आपका, इसका ये है -1 से लेके +1 के बीच में है। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आपका -1 से लेके +1 के बीच में है, ठीक है। सिस्टम आपका जो दिया हुआ है एच एस रेशनल है, लेकिन आपकी जो ये प्रॉपर्टी है जो हमने देखा था कि राइट हाफ प्लेन टू द राइट ऑफ द राइट मोस्ट पोल, राइट मोस्ट पोल कहां पे है आपका, देखिए यहां पे 1 पे है फॉर पर्टिकुलर, एक्सक्यूज मी, इन दिस, यहां पे इन दिस, यहां पे क्या है, राइट मोस्ट पोल दिस वन, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस यहां पे है। तो सिंपल सी बात है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द कॉजलिटी, ये आपका जो भी सिस्टम दिया हुआ वो कॉजल नहीं होगा। लेट्स हैव अनदर एग्जांपल, यहां पे एच एस इक्वल टू दिया हुआ है ई की पावर एस अपॉन एस प्लस 1, ई की पावर एस अपॉन एस प्लस 1। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या दिया हुआ है, आर ई, रियल पार्ट ऑफ एस इज ग्रेटर देन -1, रियल पार्ट ऑफ एस इज ग्रेटर देन -1। तो सबसे पहले रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में, ये आपका -1 है, राइट इज ग्रेटर देन -1, ये आपका रियल एक्सिस और ये आपका इमेजिनरी एक्सिस, ओके। तो ये हो गया। और यहां पे देखें, अगर हम पोल की लोकेशन देखें, पोल कहां पे है इसका, पोल एट s इक्वल टू -1। अब देखते हैं यहां पे, द ROC इज द राइट ऑफ द राइट मोस्ट पोल, द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज टू द राइट ऑफ राइट मोस्ट पोल्स। ये आपका जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया इसे, सो विद हियर वी कैन सी दैट द इम्पल्स रिस्पॉन्स मस्ट बी राइट साइडेड, इम्पल्स रिस्पॉन्स जो आपका निकलेगा वो आपका राइट साइड निकलना चाहिए। तीसरी बात यहाँ पे, अगर हम जो हमारे पास प्रीवियस इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन ये है कि अगर हम ई की पावर -AT UT का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं 1/s+1 आएगा, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो आता है इज ग्रेटर देन -1। तो विद द हेल्प ऑफ द टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, द फैक्टर ES कैन बी accumulated by a shift time function according to जो आपका ये इक्वेशन दिया हुआ है, दैट इज ई की पावर -TUT+1 इंटू ई की पावर s डिवाइडेड बाई s+1, जहां पे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आपका ग्रेटर देन -1 रहेगा। सिंपल सी बात है कि जो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है उसका हमने यहां पे यूज किया। ई की पावर -AT UT का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमको पता है। अगर अब ऐसे सोचना है हमको, अगर हम ई की पावर -T+1 UT+1 इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो ई की पावर s+1 आएगा। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे ये बताने की कोशिश करी जा रही है कि जब हम इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, मीन्स इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो क्या आ जाएगा, ST आ जाएगा। और ST इक्वल टू, यानी इम्पल्स रिस्पॉन्स इक्वल टू, यहाँ पे डिफाइन क्या होगा, ई की पावर -T+1 इंटू UT+1। तो
कुल मिला के अगर मैं मोटे तौर पे आपसे कहूं तो मैं कह रहा हूं कि वी हैव टू टेक इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो आपका एस टी आ गया और एस टी क्या आ गया आपका e की पावर माइनस टी यू टी। उसके लिए हमने क्या करा, जो आपकी टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है उसका इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो इम्पल्स रिस्पॉन्स आपका आ रहा है एस टी इज डिफाइंड बाई दिस मैनर। अब यहाँ पे हमको समझना होगा, अगर हम इसको देखें तो यू टी प्लस वन, अगर हम एस टी की बात करते हैं यू टी प्लस वन है, ई की पावर माइनस टी, इसका नेचर आपका इस तरह का होगा, ई की पावर माइनस डिकेइंग एक्सपोनेंशियल यू टी प्लस वन, यानी यहाँ से आपका शुरू होगा यू टी प्लस वन, यानी यहाँ से शुरुआत होगी ना, तो आपका इतना पार्टशिप आएगा। जो इम्पल्स रिस्पॉन्स आ रहा है वो देखिए आपका, ये आपका टाइम एक्सिस है और ये आपका एस टी है। तो ये हमने जो ये माइनस टी से शुरुआत होगी, यानी डिकेइंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन माइनस टी से शुरुआत होगा, विच इज नॉन जीरो फॉर माइनस टी टू माइनस वन टू जीरो। यहाँ पे हम देख सकते हैं इस रिस्पॉन्स की हेल्प से कि ये माइनस वन से लेके जीरो तक के बीच में ये आपका जीरो नहीं है। सो सिस्टम इज नॉट कॉजल, so system is not causal. So one point must be note that causality implies that a region of convergence is to the right of the rightmost pole, but the converse is not in general true unless the system is unless the system function is rational. So we can analyze the causality of the system with the help of the transfer function and the region of convergence, and of course with the help of the poles. Next is stability. With the help of the Laplace transform or system transfer function, we can observe the stability of the system. The system is stable or not. Here as simple as an LTI system is stable, very important line. A LTI system is stable if and only if the region of convergence of its system function includes the entire j omega axis. आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होना चाहिए, j ओमेगा एक्सिस को इंक्लूड करना चाहिए। नोट पॉइंट, stable region of convergence of its system function includes the entire j omega axis, that is real part of s is equals to 0, includes entire. So let's have example. यहाँ पे हमने एक सिस्टम फंक्शन लिया है, ट्रांसफर फंक्शन एच एस इक्वल्स टू एस माइनस वन अपॉन एस प्लस वन इंटू एस माइनस टू। ठीक है, यहाँ पे अगर हम जीरो की लोकेशन देखें तो एस इक्वल्स टू वन पे है, अगर पोल की लोकेशन देखें तो एस इक्वल्स टू माइनस वन पे है, एस इक्वल्स टू टू पे है। दिस इज द लोकेशन ऑफ द जीरोस। लेकिन यहाँ पे जो सिस्टम फंक्शन दिया हुआ है उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस डिफाइन नहीं हुआ है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इसका डिफाइन नहीं हुआ है। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस नहीं डिफाइन हुआ है तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस अगर हम बात करें तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, तीन टाइप के रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हो सकते हैं। ठीक है, स्टेबल भी हो सकता है, सॉरी यहाँ पे देखो, अब देखो हम इसका अगर पार्शियल फ्रैक्शन इस सिस्टम इसका हम करें तो ये आएगा 2/3 अपॉन एस प्लस वन प्लस 1/3 अपॉन एस माइनस टू। इसका पार्शियल फ्रैक्शन जब हम करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, लेट मी राइट, ये आएगा 2/3 एस प्लस वन प्लस 1/3 अपॉन एस माइनस टू। अब देखो, एक तो ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लें, इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लें। इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर हम बात करें
तो ये हो सकता है 2/3 e की पावर t ut हो सकता है। और इसका एक तो ये हो सकता है, दूसरे की अगर हम बात करें तो ये हो सकता है दूसरा ये हो सकता है, डिपेंड करेगा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, ये हो जाएगा 2/3 e की पावर प्लस टी u माइनस टी। एक तो ये हो सकता है। दूसरा अगर हम इसकी बात करें 1/3 होगा e की पावर 2t ut, और इसका अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 1/3 e की पावर 2t u माइनस टी। डिपेंड क्या करेगा, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस पे। जब रीजन ऑफ कन्वर्जेंस यहाँ पे ये कब होगा, जब रीजन ऑफ कन्वर्जेंस रियल पार्ट ऑफ s इज ग्रेटर देन -1। ये कब होगा, रियल पार्ट ऑफ s इज लेस देन -1। सिमिलरली यहाँ पे भी हम समझ सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ s इज ग्रेटर देन 2 और रियल पार्ट ऑफ s इज लेस देन 2। तो दो कंडीशन होते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ रीजन ऑफ कन्वर्जेंस नहीं दिया हुआ है, तो ये तीनों इसके कॉम्बिनेशन से जो भी कंडीशन बनेंगे हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। इस डायग्राम में जैसे ये दिखाया गया है कि आपके पोल की लोकेशन दिखा दी गई है, जीरो की लोकेशन दिखा दी गई है, एस प्लेन दिखा दिया गया है। तो पहला जो केस है हमने रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ऐसे मान लिया है कि ग्रेटर देन -1 है, दोनों केसेस में। तो यहाँ पे जो इम्पल्स रिस्पॉन्स निकल के आएगा, जब हम इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे इसका st, तो आपका निकलेगा 2/3 et प्लस 1/3 e की पावर 2t। इस केस में यानी दोनों आपके ut हो गए, तो आपका ये सिस्टम एक तो कॉजल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन ऑफ द कॉजलिटी, और दूसरा सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ अनस्टेबिलिटी। दूसरा देखो, दूसरा केस क्या है कि हमने ये क्या मान लिया, पहला केस इस वाले में, लास्ट वाले में, एक मिनट, हमने ये और ये कंडीशन, हम दूसरी बार क्या कर रहे हैं, एक तो कंडीशन आपका ये ले रहे हैं कि आपका एक और दूसरा हम ये यानी कि हम रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इस तरह की बात कर रहे हैं। पहला तो हमने क्या करा था, ग्रेटर देन +2 कर लिया था। अब हमने क्या करा है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस लेस देन +2 एंड ग्रेटर देन -2। उस केस में एक स्ट्रिप बन जाएगी। तो इस केस में जो आपका सिस्टम बनेगा, एक तो जो डिफिनीशन है कॉजलिटी की नॉन कॉजल बनेगा, और दूसरा स्टेबल बनेगा। ठीक है, स्टेबल बनेगा क्योंकि ये j ओमेगा एक्सिस को इंक्लूड कर रहा है। और तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरे कंडीशन में क्या है, हम क्या कर रहे हैं, ग्रेटर देन -1, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो ये सिस्टम फंक्शन दिया हुआ है ग्रेटर देन -1, यहां जैसे यहां पे दिया। तो एक तो ये क्या हो गया, एंटी कॉजल हो गया, और दूसरा क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया, j ओमेगा एक्सिस को इंक्लूड नहीं कर रहा, और जो आपका राइट मोस्ट पोल है उसके राइट हैंड साइड में नहीं है, तो ये आपका। सिमिलरली वी कैन एनालाइज with this method. So this is another example which will help to understand causality and stability of the system. You have to see another thing is the differential equation, and this is the linear constant coefficient differential, and if we take the Laplace transform, then you can write this manner, simple Laplace transform. And similarly we can if we took ys upon xs, then we can generate the transfer function of the given differential equation. And this is the RLC circuit. If we apply the simple KVL rule in this circuit, we are able to get this equation RC dy upon dt LC d square yt upon dt plus yt is equals to xt. और इसका अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं और y s अपॉन एक्स एस के फॉर्म में
मैथमेटिकली इसको अरेंज करते हैं तो आपका ये जो सिस्टम आता है वो क्या आ जाता है, ये जो टर्म आता है एच एस, वो आपका सिस्टम फंक्शन आ जाता है, ठीक है, ट्रांसफ़र फंक्शन आ जाता है। तो विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हम ट्रांसफ़र फंक्शन भी निकाल सकते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करके। ऑफ कोर्स ऑल इनिशियल कंडीशन शुड बी 0। सो थैंक यू वेरी मच।